Thousands of years ago, India discovered truths the world is still trying to understand. The Vedas are not myths, they are civilization's wisdom. The oldest knowledge known to mankind still echoes through the Vedas. A very warm welcome to all of you. Today, we are going to study about the Vedic corpus, and particularly, we are going to study what are Vedas and why are they so important and so relevant still today. Why we have to study about the Vedas, why the ancient sages actually worked only on what was written in the Vedas, why Vedas was so specific and still so precise. Let's have a look at it in today's class. And by the end of today's class, you would be able to analyze why Veda is still relevant and still studied in modern science. So let's begin our today's class. Vedic corpus. It is part of your unit 1 of the BTech syllabus of the third semester, IP University. So let's start our today's class. Vedic corpus, foundation of Indian knowledge systems. What is Vedic corpus? Vedic corpus comprises of knowledge, Shruti, Veda, and Vedic corpus. So now, let's start by understanding the meaning of the word Ved. Ved comes from the root word Vid, that means to know. With knowledge, wisdom, and science. This is what Ved is made up of. Why is it important and why is so important in the IQS today? Firstly, Vedic science is also called as the natural law and observation. It was the foundation of the knowledge system. In Vedic philosophy, we talk about metaphysics and ethics. Today's metaphysics was discovered in ancient Indian sciences way back, even we could have imagined. In Vedic society, customs and social structures were discovered that were the practical application, and Vedic engineering, technologies, and designs that were the community impact of the Vedic knowledge. So, this is how knowledge foundation, practical application, community impact, and social context help us to actually relate Veda still in the modern time. Oral tradition. पहले टाइम पे how were the Vedas taught to the students? Yeah, how Veda was actually integrated in the society in the ancient times? Firstly, there was a guru, also called as a teacher. वो गुरु पहले पढ़ाते थे. The guru teaches. The shishya listens. Shishya here refers to the students of the modern times, in the modern context. Then the shishya listens and practices. When he practices, he actually learn them by heart, and then the transmission of rituals happens. This is how oral tradition used to work in the ancient time. There were no notebook, no pen during the ancient time. It was only on the basis of your memory that you have to write, you have to tell anybody. किसी भी चीज का कोई रिटन प्रूफ था ही नहीं. आपको सिर्फ याद करना होता था. जो आपकी मेमोरी में होगा वही चीज आप बताएंगे. नाउ जब हम टाइमलाइन देखेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है ब्रोंज एज. Early civilizations and metallurgy were discovered during that time. Iron Age, widespread iron use and empires were created. Classical era, philosophy, trade, and city states. And late antiquity, transition to medieval structures. So, this is how timeline was discovered. Now, classification of the Vedic literature.
सबसे पहला आता है द कोर इज श्रुति, revealed text considered to be of divine origins. After Shruti comes Smriti, remembered text composed by human authors based on Shruti. So the core was Shruti only. Later text, com- the later text was commentaries and derivative works that interpret early scriptures. Now, श्रुति क्या होता था? श्रुति होता था जब आप अपने गुरु के पास बैठ के जो गुरु बोल रहा है वो सुन रहे हैं, और स्मृति होती है जब आपने सुना हुआ है उसी चीज को आप एक टेक्स्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो हो गई आपकी स्मृति। जो मेमोरी है उसे स्मृति कहा जाता है। और बाद में जब टेक्स्ट लिखने की ट्रेडिशन शुरू हो गई, जब टेक्स्ट लिखना एक कॉमन चीज हो गई, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे कमेंट्रीज मिलते हैं जो सेम ही स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट करते हैं अपने अपने तरीके से। नाउ, core features of the Vedic corpus were sound, ritual, and knowledge, which is also called as mantra, yajna, or jnana. Why engineers should study Vedas? As a BTech student, आप अपने मन में जरूर सोच रहे होंगे कि वेद का हमारी लाइफ से क्या लेना देना है। But let me tell you why we should study Ved. Firstly, ये एक लॉजिक बेस्ड है, बिल्ड क्लियर एनालिटिकल फाउंडेशन। इसमें कुछ भी मिथ या सुपरस्टिशियस है ही नहीं, इट इज प्योर साइंस। सिस्टम्स, सी इंटरकनेक्शंस एंड फीडबैक। हर चीज एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है कि आप देख सकेंगे कनेक्शंस और फीडबैक्स को। सस्टेनेबिलिटी, हम मैं हर क्लास में बोलती आ रही हूँ, आईकेएस का फाउंडेशन ही है सस्टेनेबिलिटी। Align designs with long-term balance. And finally, innovation. Create resilient novel solution. ये चार ऐसे पिलर्स हैं जो आपको एज एन इंजीनियर मोटिवेट करेगा टू स्टडी वेद। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेदास आज भी आपको वो टेक्निक्स और वो फॉर्मूलाज दे सकते हैं जो मॉडर्न साइंस नहीं दे पाई है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द फोर वेदास। The Four Veda, a visual journey, the foundational texts of Hindu philosophy and practice. Rig Veda, the ancient text of the world, one of the ancient text. ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि ऋग वेद सिविलाइजेशंस के स्टार्ट होने से पहले से प्राप्त यानी कि मिलती है। ऋग्वेद में क्या क्या होता है? देर आर हाइम्स, sacred ऋग्वेद सूक्ट्स of praise. There are deities, talk about deities, invocations to Indra, Agni, Varun, and nature, worship of fire, wind, dawn as divine. In the earliest time, जब ऋग्वेद बना था, the people used to worship the nature as well. हर एक चीज की थैंकफुलनेस थी, हर एक चीज को ग्रेटफुल मानते थे, हर एक चीज के लिए उनके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होता था। इसलिए हमने नेचर की हर एक चीज को गॉड बना दिया। आप देखते होंगे हमारे अग्नि को भी गॉड है, हमारा फायर भी गॉड है, हमारा वाटर भी गॉड है, हमारा विंड भी गॉड है, हमारा इवन हमारी पृथ्वी भी हमारे लिए माँ के समान है। तो इसीलिए हमारे अर्लीस्ट टाइम में हम अपने नेचर को पूछते थे। तो जब आप अपने नेचर को इतना केयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सस्टेनेबिलिटी को अप्रोच करेंगे ही करेंगे। तो ऋग्वेद में आपको मिलेंगे सारे तरीके के सूक्त जो प्रेस करेंगे इन्हीं सैक्रेड डीटीज को, और वो डीटीज कोई और नहीं आपके नेचर ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको इंद्र सूक्त मिलेगा जो मेजर पार्ट कवर करता है ऑफ द ऋग्वेद, फिर अग्नि सूक्त मिलेगा, वरुण सूक्त मिलेगा, एंड etc. A lot of sukts are there. I am just quoting some of the examples. Secondly, the second one is Yajurved, the ritual manual. जब ऋग्वेद बन गया तो दूसरा वेद बनाने की क्या जरूरत हुई? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जब ऋग्वेद बना तो उसमें सब चीज की नॉलेज थी, बट हमारे महर्षियों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि आने वाले टाइम में ह्यूमंस की रिमेम्बरिंग की शक्ति इतनी नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बुक्स को डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक वेद और बनाएंगे जिसमें सिर्फ रिचुअल्स होगा और उसे कहेंगे यजुर्वेद। सो ऋग्वेद के बाद सेकेंड वेद जो बना वो था यजुर्वेद। उसमें आपको प्रेपरेशन और कंसेंट्रेशन और एग्जीक्यूशन
यानी किसी चीज की तैयारी से लेके उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, फॉर द रिचुअल मैनुअल इन हिंदू फिलोसफी, वो आपको यजुर्वेद में मिलेगा। आपका कर्म कांड, आपका हवन, आपके घर में कोई पूजा है तो जो आपके पंडित जी आते हैं वो सब यजुर्वेद पढ़ते हैं, तभी वो कर्मकांड कर पाते हैं। थर्ड वॉज द सामवेद। जब ऋग्वेद को फर्दर डिवाइड किया गया तो कहा गया कि इसमें कुछ ऐसे सूक्त हैं, ऐसे कुछ श्लोक हैं जो गाना पड़ता है, जो गा के किया जाता है। तो उसके लिए एक थर्ड वेद बना गया, दैट वॉज सामवेद, द म्यूजिक ऑफ द डिवाइन। इसमें आपको म्यूजिकल नोट्स मिलेंगे, सैक्रेड चैंट्स मिलेंगे और स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आपने गायत्री मंत्र पढ़ा होगा और जब आप उसे गाते हैं तो वो तरीका सामवेद आपको बताता है। किसी मंत्र को कैसे गाना है ये सामवेद में है, और कौन कौन से गाने वाले मंत्र हैं ये भी सामवेद में है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि ये तीन जो हमारे वेद है वो डिविजन्स क्यों हुए, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड यजुर्वेद एंड सामवेद, अगर हमारे पास ऋग्वेद में सब कुछ है। नाउ द मोस्ट मॉडर्न वेद वाज द अथर्ववेद। ये है प्रैक्टिकल विजडम का वेद। इसमें आपको मॉडर्न साइंसेस यानी जैसे कि मेडिसिनल नॉलेज, डेली एप्लीकेशन और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मिलती हैं। आयुर्वेद भी अथर्ववेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब अब बात हुई कि ऋग्वेद में जब ये भी था तो अथर्ववेद बनाने की क्या जरूरत हुई, हमारे वेदव्यास जी ने जिन्होंने वेदों को इकट्ठा किया है, आपको ये बात पता होगा कि वेद किसी ने लिखा नहीं है, वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय है यानी कि वो गॉड सेंट था। अब उसको इकट्ठा करके जब एक बुक फॉर्म में वेद व्यास जी ने लिखा, तब आप देखते हैं कि इतना बड़ी बुक हो गई कि वो शायद पढ़ने में इजी ना रहे, इसलिए उसको डिवाइड किया गया। सो अथर्ववेद कंप्राइजेज योर मॉडर्न साइंस टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, सर्जरी एंड एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक्स, ये सब आपको अथर्ववेद में मिलेंगे। फोर वेदास यूनिफाइड स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपके लिए, ताकि आप समझ सकें कि कैसे वो फोर वेद हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ वैदिक नॉलेज, इंजीनियरिंग, वास्तुशास्त्र प्रिंसिपल्स इन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र आपके कोर्स का पार्ट होगा। एंड वास्तुशास्त्र इज नथिंग बट एंशियंट इंडियन नॉलेज। इसमें आपको उस टाइम पहले ही, इतने टाइम पहले बता दिया गया था कि इन विच डायरेक्शन विच पार्ट ऑफ द होम शुड बी मेड, बिकॉज आपकी घर की एनर्जीज आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। सो इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वास्तुशास्त्र। मेडिसिन, आयुर्वेद, आज भी आयुर्वेद बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो आयुर्वेद का ज्ञान अथर्ववेद में मिलता है, तो ये इतना एंशियंट है। म्यूजिक, राग सिस्टम इन्फ्लुएंसिंग इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशंस। अभी हमने डिस्कस किया सामवेद कंटेन्स दी म्यूजिकल एस्पेक्ट्स, म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसमें। सो क्लासिकल म्यूजिक का टाइम उस वे बैक है। एक गंधर्व करके आपने सुना होगा, वो लोग ट्रेडिशंस जनरेट करते आए हैं ऑफ क्लासिकल डांसिंग। एनवायरमेंट, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फ्रॉम अथर्ववेद। अथर्ववेद एक मॉडर्न साइंस पे बेस्ड है, इसलिए जितने आपको आज के टॉपिक्स होंगे ना वो सब अथर्ववेद में मिल जाएंगे। Key differences: Rigved is hymns and praises, Yajurved is ritual procedures, Samved is musical chants, and Atharved is practical life. इसमें स्पेल्स एंड रेमेडीज होती है, सामवेद में मेलोडीज फ्रॉम ऋग्वेद होती है, यजुर्वेद में मंत्र विद इंस्ट्रक्शंस है, और ऋग्वेद द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द होल वर्ल्ड has 1028 sukts in 10 books. That's how huge it is. नाउ ये छोटा सा मेमोरी ट्रिक आपके लिए है ताकि आप इसे याद कर सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको एग्जाम से पहले भी रिवाइज कर सकते हैं। In the next class, we are going to study about what is beyond the four Vedas and the most famous Vedangs. Till then, thank you for watching. And if you liked this video, if you find it really helpful, subscribe to our channel, like, share it with your friends, and comment if you have anything to say, if you have any doubts. So, till then, keep studying, and we'll meet in the next class. Thank you.